what are the bones which we have in the thoracic cavity. That is very important. So for the thoracic cavity, generally in the bony structure which we discussed, that is the ribs along with the thoracic vertebrae and the sternum. Ribs जो हैं, if you observe the ribs, they form the thoracic cage. जो thoracic cage जो बना है ribs का, if you observe, we have 12 pair of the ribs. We have 12 pair of the ribs, right side and the left side. Right side we have 12 ribs and the left side we have again the 12 ribs. In these ribs, if you observe these ribs, they start from the vertebrae and then they attach onto the sternum. और जब sternum पे attach होते हैं तो वो directly और indirectly sternum पे attach होते हैं. If you observe the first upper 7 ribs, first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh, these 7th ribs are directly attached with the costal cartilages which are attached onto the sternum. तो हम इनको बोलते हैं vertebrosternal ribs, क्योंकि vertebrae से start हुए हैं और sternum पे आके attach हैं, तो we call them vertebrosternal. और ये जो vertebrosternal ribs हैं, इन्हीं ribs को हम लोग बोलते हैं true ribs. True क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि they started from the vertebrae and attached onto the sternum. So these are called as vertebrosternal ribs. But you observe, start from the 8th, 9th and 10th. जब 8th, 9th और 10th जो ribs की बात करेंगे हम लोग, ये तीनों ribs जो हैं, they are attached with the costal cartilage of 7th costal cartilage. So it means they are not attached directly with the sternum. These 8th, 9th and 10th, they are attached with the 7th costal cartilage. So these ribs are called as false ribs. True ribs वो ribs हैं जो vertebrae से start हुए, sternum पे attach हुए, तो vertebrosternal up to the 7th. 8th, 9th, 10th ये तीनों 7th costal cartilage से attach हुए, sternum से नहीं है, तो we call them false rib. And 11th and 12th, you observe these 11th and 12th start from the vertebrae, but when they come anteriorly, they are not attached with the costal cartilage, so they are floating ribs. So they are also a part of false ribs. So upper 7 ribs are the true, lower 5 ribs are false. Upper 7 ribs are vertebrosternal, lower 8th, 9th, 10th are vertebrochondral, and 11th and 12th are false ribs. This is very important. Now you observe each and every rib. Between each and every rib, you have intercostal space. So when you observe the anterior side, we have these 9 intercostal spaces, but posteriorly when we observe, the spaces are up to the 11. There are 11 intercostal spaces in each, but anteriorly we do not have 10th and 11th intercostal space. क्यों? क्योंकि anterior side में 11th और 12th rib पहुंच ही नहीं पाए, वो बीच में ही खत्म हो गई. तो always remember ribs जितनी भी हैं ये vertebrae से start होती हैं और sternum पे जाती हैं और otherwise costal cartilage पे जाती हैं. तो we call them vertebrosternal और vertebrochondral ribs. तो ribs जो है वो true, false और floating में हमने divide किया हुआ. अगर जो अपर 7 रिब्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ट्रू रिब्स हैं, लोअर 5 रिब्स जो हैं वो फॉल्स हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. 11th एंड 12th आर फ्लोटिंग रिब्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो रिब्स है उनका साइज जो है वो इंक्रीज होता है 1st to 7th एंड देयर आफ्टर 7th के बाद साइज डिक्रीज होना स्टार्ट होता है. तो लॉन्गेस्ट रिब जो है वो आपकी 7th रिब है, ये हमेशा ध्यान रखिए. और ऑब्लिगिटी जो है वो ऑब्लिगिटी भी रिब्स की इंक्रीज होती है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर, इस इमेज को देखिए आप, ऑब्लिगिटी भी इंक्रीज होती हुई जा रही है. मैक्सिमम ऑब्लिगिटी जो रिब की मिलती है वो आपको मिलेगी 9th रिब पे, उसके बाद फिर वो कम हो जाएगी क्योंकि नीचे नीचे जाएंगे जैसे जैसे फ्लोटिंग रिब्स आएंगे. तो जो साइज है वो लॉन्गेस्ट रिब है 7th और जो 9th रिब है दैट इज हैविंग द मैक्सिमम ऑब्लिगिटी. Another 2 features of the ribs is what? Typical and atypical rib. What is typical rib and what is atypical rib? That is very important. Typical ribs वो ribs हैं जो आपकी vertebrae से start हुई हैं, sternum पे हैं, and of course they have same features. But atypical ribs जो हैं वो ribs same feature नहीं है, उनमें अलग से कुछ features हैं, तो उन्हें बोला गया एटिपिकल रिब. टिपिकल रिब वो रिब्स होती हैं जिनमें सिमिलर फीचर्स होते हैं. तो टिपिकल रिब जनरली हम लोग बोलते हैं थर्ड वन, थर्ड टू लेकर 8th रिब,
or even ninth rib, they are typical. It means they have same features. थर्ड रिब, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ये सबका सेम फीचर है. एक भी रिब में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ये थर्ड है या ये नाइन्थ है. हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि सेवेंथ इज द लॉन्गेस्ट वन एंड नाइन्थ इज द मैक्सिमम ऑब्लिविटी. Otherwise, it is very difficult to identify between the third and the ninth because they have the same feature. But first, second, 10th, 11th, 12th, they are atypical rib because they have a different some features. Now look at this rib. जब आप इस रिब को देख रहे हैं, ये रिब आपकी थर्ड टू नाइन्थ है, मतलब टिपिकल है. सेम फीचर्स. क्या है सेम फीचर? आप ऑब्जर्व करिए. ये इसका वर्टिब्रल एंड है एंड दिस इज कॉस्टल एंड. कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये वर्टिब्रल है और ये कॉस्टल है? कॉस्टल एंड को ऑब्जर्व करना. दिस इज कॉन्केव और ये कॉस्टल एंड अटैच होता है कॉस्टल कार्टिलेज पे. बट व्हेन आई लुक एट द वर्टिब्रल एंड, this vertebral end is somewhat having two depressions. These depressions are called as facets. Now look at this. There are two facets I am observing. The number one, the upper facet and the lower facet. जो upper facet है वो small है, lower facet जो है वो big है. क्यों? क्योंकि जो lower facet है वो हमेशा corresponding vertebra से articulate करता है, जबकि जो अपर फेसेट है that has to articulate with the upper vertebra. कैसे? Suppose if this is the third rib, if I consider this is the third rib, the lower facet will articulate with the third vertebrae, but the upper facet articulates with the second vertebra. याद रखिएगा प्लीज. तो ये जो दो फैसेट्स मिले हैं, ये आपको दो फैसेट मिले हैं वर्टिब्रल एंड. इसको हम हेड भी बोलते हैं रिब का. और जब हेड से हम थोड़ा सा लेटरल चले तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है दैट इज द नेक. और नेक के बाद जो तीसरा पोर्शन हमें दिखाई दिया दैट इज द ट्यूबरकल. सो ऑन टू द वर्टिब्रल साइड वी हैव हेड, नेक एंड ट्यूबरकल. ये जो हेड है ये आर्टिकुलेट करेगा वर्टिब्रल बॉडी से. नेक जो है वो आर्टिकुलेट करेगी ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा करस्पॉन्डिंग. और जो ट्यूबरकल है वो आर्टिकुलेट करेगा आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस से, करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्स प्रोसेस से. तो इसका मतलब ये पूरा वर्टिब्रल एंड हो गया. तो वर्टिब्रल एंड इज हैविंग थ्री पार्ट्स, हेड, नेक एंड ट्यूबरकल. इंपॉर्टेंट क्या है कि हेड पे जो दो फैसेट्स है, ये दो फैसेट आपको टिपिकल वर्टिब्रा में ही मिलेंगे. और जो लोअर फैसेट होगा वो बिगर होगा, अपर फैसेट होगा स्मॉल होगा. लोअर फैसेट आर्टिकुलेट करेगा करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से, अपर आर्टिकुलेट करेगा अपर वर्टिब्रा से. नाउ लुक एट द हेड. और जो वर्टिब्रल एंड है, ये वर्टिब्रल एंड जब बॉडी से कनेक्टेड है तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, एक्यूट एंगल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो टिपिकल रिब्स हैं उनमें ये कर्वी एंगल है, एक्यूट एंगल है, शार्प है. इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द रिब, विच इज वेरी कॉमन फॉर द फ्रैक्चर. क्योंकि एक तरह से साइज चेंज, एक तरह से उसका जो चेंज है वो यहीं पे हो रहा है चेंज. तो ये इसका एंगल है नंबर 6. और जब मैंने शाफ्ट को ऑब्जर्व किया, बॉडी को ऑब्जर्व किया रिब की, तो जो इनर सरफेस है उस इनर सरफेस की लोअर बॉर्डर पे ऑब्जर्व करिए. देयर इज ए ग्रूव यू आर ऑब्जर्विंग. द ग्रूव व्हिच यू आर ऑब्जर्विंग ऑन टू द इनर सरफेस ऑन टू द लोअर साइड, दिस ग्रूव इज कॉल्ड एज कॉस्टल ग्रूव. ये जो कॉस्टल ग्रूव है, ये कॉस्टल ग्रूव हमेशा लोअर बॉर्डर पे ही मिलेगा, इंफीरियर सरफेस की लोअर बॉर्डर पे, अपर पे नहीं मिलेगा. दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द साइड. And that is what the costal groove. This costal groove attachment give attachment to the muscle, and also it is having the neurovascular bundle. जितनी भी इंटरकॉस्टल स्पेस की मसल्स हैं वो यहीं से स्टार्ट होती है और इन्हीं के बीच में वेन, आर्टरी और नर्व मिलती है. तो ये सिमिलर फीचर्स थर्ड टू नाइन्थ रिब में मिलते हैं, इसलिए इनको बोला गया टिपिकल रिब्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज हाउ दे इंटरकनेक्टेड. सी टिपिकल रिब का हेड देखिए, आपका लोअर फैसेट आपकी करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से है, अपर फैसेट आपका अपर वर्टिब्रा से कनेक्टेड है. नेक जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से, ट्यूबरकल जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस के फैसेट से. एंड दिस इज द एंगल एंड दिस इज द शाफ्ट और द एंड दिस इज द कॉस्टल एंड व्हिच इज कनेक्टेड विद द करस्पॉन्डिंग कॉस्टल प्रोसेस. So this is how the typical vertebrae used to articulate. तो टिपिकल टिपिकल रिब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
पता होना चाहिए कि टिपिकल रिब के क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे कनेक्टेड है। तो दिस इज अबाउट द टिपिकल रिब. The typical rib is having the head, which is having the two facets, neck and the tubercle, and then lower border of inferior surface पे we have a groove. That groove is called as costal groove. That is very important. अगर हम atypical rib की बात करें, the first, second, 10th, 11th and 12th, they are the atypical rib. It means they do not have double facets onto the head. आप ऑब्जर्व करिए, दिस द फर्स्ट रिब. फर्स्ट रिब में एक्यूट एंगल भी नहीं है. फर्स्ट रिब में आप ऑब्जर्व करिए, इसकी इंफीरियर सरफेस नहीं है, इसकी सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस. फर्स्ट रिब में यू आर नॉट ऑब्जर्विंग द कॉस्टल ग्रूव. फर्स्ट रिब में जो दिस इज द हेड इज हैविंग ओनली सिंगल फैसेट, देयर इज नो टू फैसेट्स. दिस इज द कॉस्टल एंड आई कैन आइडेंटिफाई, okay, this is articulating with the costal process of the first. This is the tubercle, I can identify. This is the neck, I can identify. This is the head, but head is not having the two facets. टिपिकल में हमने देखा था कि दो फैसेट मिलेंगे, यहाँ पे एक सिंगल फैसेट है. दिस इज द फर्स्ट रिब, दिस इज एटिपिकल रिब. अगर हम सेकंड रिब को देखें, नाउ ऑब्जर्व द सेकंड रिब. दिस इज द फर्स्ट रिब एंड दिस इज सेकंड रिब. अगेन सेकंड रिब इज आल्सो हैविंग ए सिंगल फैसेट. देयर इज नो टू फैसेट्स. सेकंड रिब में नेक है, ट्यूबरकल है, बट इट लुक्स लाइक समवॉट समवेयर एज अ फर्स्ट रिब इटसेल्फ. फर्स्ट रिब की डबल साइज जैसा दिख रहा है बस मुझे. अदरवाइज यहाँ पे कॉस्टल ग्रूव होना स्टार्ट हो गया है, but there is no two facets, there are no two facets onto the head. So this is another atypical rib. 11th 12th floating ribs हैं तो definitely वो भी atypical. जब हम vertebrae की बात करते हैं तो we have vertebrae in body, और vertebrae के जो parts हैं ये important parts हैं. Now look at the vertebra. मुझे नहीं पता whether it is a cervical, thoracic, lumbar or sacral vertebrae. How to identify that? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्टिब्रे के पार्ट्स क्या क्या हैं. नाउ लुक एट दिस, दिस इज द वर्टिब्रल बॉडी. सबसे पहले जो एंटीरियर पार्ट आपको दिखाई देगा दैट इज द बॉडी. बॉडी से जो पार्ट स्टार्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड एज पेडिकल. दीस आर द टू पेडिकल्स. इन टू पेडिकल्स दे आर कनेक्टेड विद द लेमाइना. ये दो लेमाइना है और ये दोनों लेमाइना आपस में जुड़ करके सेंटर में एक प्रोसेस बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस. और पेडिकल और लेमाइना के जंक्शन पे आपको दो प्रोसेस दोनों साइड में मिल रहे हैं. ये ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है तो इनको बोल दिया गया ट्रांसवर्स प्रोसेस. सेम पेडिकल और लेमाइना के जंक्शन पे ऊपर की साइड में जो दो प्रोसेस दिख रहे हैं इनको बोल दिया गया सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस. ऐसे दो प्रोसेस नीचे मिलेंगे उनको बोला जाएगा इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस. तो आई कैन से एट द जंक्शन ऑफ पेडिकल एंड द लेमाइना वी हैव 6 प्रोसेसेस. 2 सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, 2 inferior articular process and 2 transverse process, and 1 we have spinous process that is in the midline. तो total 7 processes हैं एक वर्टिब्रा. तो वर्टिब्रा के दो पार्ट हुए, एक आगे वाला पार्ट दैट इज द वर्टिब्रल बॉडी एंड जो दूसरा पार्ट है दैट इज द न्यूरल पार्ट जहां पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है. नाउ लुक एट दिस, दिस इज द वर्टिब्रल फोरामेन जहां पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है और इसके सराउंडिंग दीज आर द प्रोसेसेस. So there are total 7 processes you are observing. Now look at this image. This is again, this is the vertebral body, vertebral foramen you are observing, where we have the spinal cord. These are the 2 transverse process you are observing. These are the 2 superior articular process you are observing, and this is the one spinous process you are observing. So this is another vertebra which we have. Now look at this. This is the vertebral body. These are the 2 superior articular process. These are 2 inferior articular process. Superior articular process articulates with the inferior articular process of upper vertebrae, and inferior articular process articulates with superior articular process of lower vertebrae. Because तभी तो vertebra पूरा जुड़ेगा एक साथ. और यहाँ पे देखिए ये दो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं and this is the one spinous process you are observing, and this is the canal where we have the spinal cord, और ये notches हैं जहाँ से हमारी spinal nerves बाहर आती है. So this is how the vertebrae look like. जब हम thoracic vertebrae की बात करते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? Now look at this image. This image is having the vertebral body, spinous process, transverse process, सब कुछ है. बट इस इमेज के बाद मुझे पता चला कि जो इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसमें भी एक फोरामेन. दिस इज द कार्डिनल फीचर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे. याद रखिएगा, कीप इट इन माइंड. सर्वाइकल वर्टिब्रे जितने भी हैं उनमें सब में
ट्रांसवर्स प्रोसेस में एक फोरामेन होता है जिसको बोला जाता है फोरामेना ट्रांसवर्सेरियम, दैट इज इन द सर्वाइकल वर्टिब्रे, और उनके जो स्पाइनस प्रोसेस है वो बाइफिड है। तो इस ऐसे वर्टिब्रे जो भी दिखाई देंगे मैं बोल दूंगा दीज आर दी सर्वाइकल वर्टिब्रे, दीज आर नॉट थोरेसिक वर्टिब्रे। जब मैंने थोरेसिक वर्टिब्रा को ऑब्जर्व किया, थोरेसिक वर्टिब्रा को ऑब्जर्व किए, ट्रांसफर प्रोसेस पे देयर इज नो फोरामेन। थोरेसिक वर्टिब्रा का इंपॉर्टेंस क्या है कि थोरेसिक वर्टिब्रा की जो बॉडी है उस बॉडी के लेटरल साइड में देखो आपको फैसेट दिख रहे हैं। ये जो फैसेट है क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको रिब्स जो है उसका जो हेड है वो आर्टिकुलेट करेगा बॉडी से, और जो ट्यूबरकल है वो आर्टिकुलेट करेगा ट्रांसवर्स प्रोसेस से। तो इसका मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा जो है उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे भी फैसेट मिलेगा और बॉडी पे भी एक कॉस्टल फैसेट मिलेगा। इसका मतलब ये जहां पे भी अगर वर्टिब्रल बॉडी पे या ट्रांसवर्स प्रोसेस पे कोई फैसेट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा है। और सर्वाइकल वर्टिब्रा को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उनके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं उनमें आपको फोरामेन दिखाई देगा, फोरामेना ट्रांसवर्सेरियम जिसे हम बोलते हैं। So this is how we identify the thoracic vertebra. Now look at this vertebra. इस वर्टिब्रा में देखिए वर्टिब्रल बॉडी बहुत बड़ी है, ट्रांसवर्स प्रोसेस बहुत छोटा है, there is no facet onto the transverse process in the body, there is no foramen onto the transverse process। तो सर्वाइकल भी नहीं है, थोरेसिक भी नहीं है, तो कौन सी है ये, दिस इज द लंबार वर्टिब्रा। So this is how we differentiate between the cervical vertebrae, thoracic vertebrae and lumbar vertebrae। So सर्वाइकल वर्टिब्रे का मेन फीचर, सर्वाइकल वर्टिब्रे के ट्रांसवर्स प्रोसेस में आपको फोरामेन मिलेगा, थोरेसिक वर्टिब्रे के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे फेसेट मिलेगा, साथ में बॉडी पे भी फेसेट मिलेगा बिकॉज रिब्स हैज टू आर्टिकुलेट। लंबार वर्टिब्रा में आपको फेसेट्स नहीं मिलेंगे, फोरामेन नहीं मिलेंगे, ट्रांसवर्स प्रोसेस छोटा होगा, वर्टिब्रल बॉडी बड़ी होगी। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबार। तो जब बेसिक एक आइडिया हमें मिल जाता है रिब्स का एंड वर्टिब्रे का, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि थोरैक्स में क्या क्या चीजें हैं, कैसे स्ट्रक्चर अटैच है। तो सबसे पहले जो हम थोरैक्स में डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं आपका थोरेसिक इंटरकोस्टल स्पेसेस। क्या है ये इंटरकोस्टल स्पेस? वो स्पेस है जहां पे, नाउ लुक एट दिस, बिटवीन द टू रिब्स जो एक स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल स्पेस। जो आपका थोरेसिक केज है, ये थोरेसिक केज बना है, एंटीरियरली वी हैव स्टर्नम, लेटरल साइड में वी हैव रिब्स एंड पोस्टीरियर साइड में वी हैव अ थोरेसिक वर्टिब्रे। ये आपस में जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये केज बना है। इसी केज के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो वाइटल ऑर्गन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम बोलते हैं मीडियस्टाइनम। और इन रिब्स का मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, क्योंकि जब डायफ्राम मूव करेगा लंग्स एक्सपेंड होंगे, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। साथ में इनका दूसरा फंक्शन क्या है, इन रिब्स का दूसरा फंक्शन है कि ये एक स्केलेटल सिस्टम बना रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। यहाँ पे दो तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं रिब्स में। एक मूवमेंट में आप ऑब्जर्व करिए, इस वाले मूवमेंट में आपका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, दिस इज एंटीरियर स्टर्नम एंड दिस इज द पोस्टीरियर वर्टिब्रे। इन दोनों के बीच में जो ये diameter है, this is the anterior posterior diameter. So this anterior posterior diameter, if it is increasing, this movement is called as pump handle movement। इस movement को बोलते हैं pump handle movement। ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है? दिस pump handle movement generally seen in upper 6 intercostal spaces और upper 6 ribs, I can say। जो अपर रिब्स हैं, अपर 6 रिब्स में जब भी लंग एक्सपेंड करेगा उस दौरान एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे ही लंग एक्सपेंड हुआ अपर 6 रिब्स में स्टर्नम आगे जाएगा, स्टर्नम आगे जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जो है मूवमेंट होंगे और वो मूवमेंट कहलाएगा आपका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। एट द सेम टाइम द लोअर 6 स्पेसेस जो हैं, नाउ लुक एट दिस, द लोअर 6 स्पेसेस में लोअर 6 रिब्स पे जो डायमीटर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द लंग एक्सपेंशन, दैट इज द ट्रांसवर्स डायमीटर।
This is the diameter which is increasing in the lower 6 ribs. तो अगर ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, दिस डायमीटर इफ इट इज इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड एज बकेट हैंडल मूवमेंट. सो दो तरह के मूवमेंट होते हैं ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन. जब हम लोग लंग एक्सपेंड होता है तो दो तरह के मूवमेंट होते हैं, पंप हैंडल मूवमेंट एंड बकेट हैंडल मूवमेंट. पंप हैंडल मूवमेंट आपके अपर 6 रिब्स पे है, बकेट हैंडल मूवमेंट लोअर 6 रिब्स पे है. Anterior posterior diameter is increasing in the pump handle movement, whereas transverse diameter is increasing